Hi there, welcome back to the history class. In the last video, we were studying about the Roman Empire. Today is the last video, and we finished this chapter also. And just a quick recap, we studied about the economic condition of Rome. We also studied about the crisis that Rome was going through when the Sasanian Empire was extending. And we studied something about the gender, the literacy system, the culture that existed in Rome. In the previous videos, I have also told you something about slavery and how slaves were treated in Rome. Today, I'm going to just elaborate on that point. Also, हम conclude करेंगे chapter को, तो कुछ important बातें मैं आपको बताऊंगी. Just make a note of it. Okay? Alright, so today we are on the topic controlling the workers. पहले ही आपको पता चुके हैं हम कि slavery existed in Rome and it was a very important part of the system. जो दास प्रथा थी वो सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा थी. इनिशियली जब अगस्टस सीजर जो थे, जो फर्स्ट किंग थे, जो वो रूल करते थे, तो दे वर अबाउट 3 million slaves. लेकिन एज वी गो फर्दर इन द रोमन एम्पायर, एज ईयर्स पास्ट, तब 7.5 million slaves existed in that whole kingdom. So basically both classes, rich classes as well as the poor classes, both classes kept slaves. दोनों slaves रखते थे, लेकिन जो रिच क्लास के लोग थे वहाँ पे स्लेव ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उनसे प्रूव होता है कि जो रिच क्लासेस थे वो स्लेव्स को बुरी तरह ट्रीट करते थे एंड द middle class people or the ordinary class people treated them with little bit of compassion. ये एक देखा गया है कि जैसे फर्स्ट सेंचुरी में जो हम लोग ने, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि इट वाज अ वेरी पीसफुल सेंचुरी, यू नो, द फर्स्ट 2 centuries देयर वर हार्डली एनी वॉर्स एंड बेसिकली क्या होता था जब वॉर्स होते थे और जैसे सपोजिंग रोमन्स जीत गए हैं वो वॉर, तो जिस भी कंट्री या ट्राइब या एरिया को हराए हैं तो वहाँ से जो लोगों को वो गिरफ्तार करते थे या कैप्चर करते थे, उन्हीं लोगों को वो स्लेव्स बना देते थे. बट सिंस देयर वर नो वॉर्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, सो देयर वर लेस स्लेव्स. So we see a decline in slavery in the first century. तभी अगस्टस सीजर के टाइम पे सिर्फ 3 million slaves थे, लेकिन as time passed तो it increased. Something is mentioned about slave breeding also in the chapter. Slave breeding यानी कि slaves जो थे आपस में शादी कर लेते थे, men and women of course, and they used to give birth to their children. But जैसे they used to give birth in order to, when their children will grow up, they will also become slaves. Okay, ये चीज़ उनमें like it was understood. ये चीज़ वो लोग पहले से ही जैसे कि हम लोग के प्रोफेशनलिज्म जो होता है, in the sense कि what I'm trying to tell you is that when we talk about some professions existing in the family in the olden times, जैसे पॉटर्स के बच्चे हैं तो वो पॉटरी बनाएंगे, या फिर कोई आर्मी में है तो वो चाहेगा कि उसका बच्चा आर्मी में जाए. ऐसी स्लेव्स की फैमिलीज में जब वो उनके बेबीज होते थे तो वो अंडरस्टूड था कि वो बड़े होके वो भी स्लेव्स बनेंगे. That was a sad custom, but yes, it did exist. Sometimes क्या होता था कि these slaves were freed by their owners, right? जैसे उनके owners ने उनको जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट है कि यार ज़िंदगी भर तुम हमारे यहाँ रहोगे या इतने साल के लिए तुम मेरे स्लेव बन के रहोगे,
whatever was that, they will, supposing they are freed from that contract, or supposing they are freed from slavery, in that case they used to be made the managers of those industries or factories which their owners owned, और उसी के they were supposed to take care of their business. यानी कि थोड़ा सा रिस्पेक्टेड काम उनको दिया जाता था, थोड़ा सा उनका जो स्टेटस था, नॉट मच बट इट डिड इम्प्रूव. The mere fact that they were relieved from slavery or they were freed from slavery was a very important thing. उन लोग के लिए बहुत मायने रखता था वो बात. Also एक और चीज़ है, जैसे slaves, obviously slaves were working for everybody, so there were supervisors who would supervise these slaves. तो जैसे कि बड़ी इंडस्ट्री है या बड़ी फैक्ट्री है या जो भी काम हो रहा है, ब्रिक्स बनाने का काम है या बिल्डिंग बनाने का काम है, तो हर 10 स्लेव्स के ऊपर एक सुपरवाइज़र होता था. द सुपरवाइजर्स ऑल्सो हैड अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले, बट इससे ग्रुपिज्म ऑल्सो इंक्रीज्ड. ओके, कभी कभी ये भी देखा गया है कि जैसे जहाँ पे फ्रैंकिनसेंस होता है, उसको बोलते हैं लोबान, या फिर हम लोग को जैसे धूप बत्ती होती है जो हम लोग पूजा के टाइम पे जलाते हैं, आप किसी के घर में यूज़ होता होगा, दुकानों में ख़ास तौर से यूज़ होता है. तो उसके जहाँ पे वो बनता था, जहाँ पे फ्रैंकिनसेंस बनते थे, जहाँ पे फ्रैंकिनसेंस के इस्तेमाल से परफ्यूम्स बनते थे, इंसेंस बनते थे, तो वहाँ के लोग स्पेशली, देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड अलेक्जेंड्रिया, वहाँ पे बहुत इसका काम होता था, फैक्ट्रीज थे. तो वहाँ तो इतना ज़्यादा ये स्लेवरी था कि उन फैक्ट्रीज़ में सब स्लेव्स के एप्रन्स पे एक सील होती थी दैट वुड लाइक डिफ्रेंशिएट कि ये स्लेव है और ये सुपरवाइज़र है. ठीक है, तो उनके एप्रन्स पे, मास्क पे, उनके कभी कभी उनके मैश लगाना पड़ता था, उनके मास्क पे नेट्स होते थे, तो वो उनको डिफ्रेंशिएट करता था. एंड इवन देयर वाज अ थिंग कि जैसे जब स्लेवरी थोड़ी कम होने लगी तो कहीं ना कहीं से तो काम करना ही था. तो सो दीज पेरेंट्स नो द वंस हु वर इन स्लेवरी, वो क्या करते थे, अपने बच्चों को, जैसे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्योंकि पैसे की कमी है, काम नहीं मिल रहा है, तो उनके पास पैसा, लाइक दे यूज्ड टू टेक लोन्स, और वो डेट भरने के लिए कभी कभी, या जो भी उनके पर सर पे लोन था, उस लोन को चुकाने के लिए कभी कभी वो अपने बच्चों को एज स्लेव्स बड़ी बड़ी फैमिलीज, रिच फैमिलीज में बेच दिया करते थे. सो बेसिकली what we study that in the Roman civilization, slavery had a very important part to play. Higher middle class लोग और rich class लोग, जो aristocracy वगैरह included, they definitely owned slaves. Some were slaves for lifetime, यानी कि उन लोग ने उनको खरीदा हुआ था और फिर वो लोग उनसे काम करवाते थे. Sometimes these slaves would be brought home as children and they would work till they become old. कभी कभी when initially we started, there were only 3 million slaves, but by the time the Roman Empire comes to a decline या comes to an end, तब हम देखते हैं 7.5 million slaves थे. So you can understand कि उनकी पूरी society slaves पे depend करती थी. Next topic today is social hierarchies. ठीक है, now earlier also मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया कि सेनेट कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता था इनिशियल ईयर्स में, राइट. लेकिन धीरे धीरे इस सेनेट कौन होते थे, नोबलमैन, एरिस्टोक्रेसी. व्हेनेवर आई एम सेइंग एरिस्टोक्रेसी, यानी कि वो रिच लोग जो जिनका किंग्स और क्वींस से लेना देना, यानी कि उनके या तो उनके रिश्तेदार होंगे या फिर व्हाट आई फॉरगॉट दैट वर्ड इन भोजपुरी,
बट दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, दूर के रिश्तेदार, पास के रिश्तेदार, तो दे आर वेरी वेरी रिच, तो उनको नोबल मैन भी कहा जाता है। यही नोबल मैन में कुछ लोग जो थे वो बहुत पावरफुल होते थे और वो ही लोग सेनेट बनाते थे। तो जो भी उस किंगडम में कोई भी डिसीजन लेना है तो सेनेट वो डिसीजन लेगा। जो शेक्सपियर की जो जिस स्टोरी के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था कि जूलियस सीजर वहाँ के एक राजा थे, तो उसी में जो सेनेट के लोग हैं वो जूलियस सीजर को मार देते हैं just to prove their supremacy, and they did not want to accept the king's supremacy. So वो तो स्टोरी में हुआ था। पर coming back to this to what actually existed in Rome was the fact कि जो सेनेट था वो बहुत पावरफुल था और वो सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से भरा हुआ था और उनका होल्ड बहुत ज़्यादा था। बट लेटर ऑन जब काफ़ी साल फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी बीत गए, यानी कि फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries, यानी कि 200 years तक सेनेट was very very powerful. But as the 3rd and 4th century come, we see how the Caesar becomes powerful. Caesar is the king. King के लिए Caesar word use होता है। Caesar and his military became more powerful, and this was the reason why military और senate में कभी भी पटती नहीं थी, because जो king था वो military को ज़्यादा importance देता था बजाय senate के, and senate wanted to overpower the king, जो king को पसंद नहीं था। ओके, सोसाइटी में भी बड़ी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी। जो हम बोलते हैं जिसको हम अपर मिडिल क्लास, दैट कंसिस्टेड ऑफ बिजनेस क्लास पीपल एंड आर्मीआइट्स, ओके, द वंस हु वर इन द आर्मी। और जो लोअर क्लास पीपल थे उसमें थे वर्कर्स, लेबरर्स, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं वो, और लास्ट ऑफ द लॉट्स थे स्लेव्स। तो ये कैटेगरीज थी। पहली सीजर, फिर जो नोबल मैन होते हैं, उसके बाद आर्मी, बिजनेस क्लास, फिर लेबरर्स, वर्कर्स, फार्मर्स, और फिर लास्ट में स्लेव्स। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ द 1st and 2nd century जो प्रीस्ट क्लास थी, दैट वाज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन रोम, बट लेटर इन द 3rd and the 4th century ये नोटिस किया जाता है कि इवन द क्लर्जी, जो प्रीस्टली क्लास होती है उसको क्लर्जी कहा जाता है, जो फादर्स वगैरह थे, बिशप्स एंड ऑल, बिकॉज क्रिश्चियनिटी gained momentum and Christianity became the main religion of Rome, तो जो क्लर्जी था उनका होल्ड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ओके, सो किंग्स और क्वींस के बाद फिर एरिस्टोक्रेसी, मतलब फर्स्ट लेवल के बाद क्लर्जी आने लगा। सो तभी उसी से अगर आप हमने आई डोंट नो यू मिस स्टडिंग अर्लियर, जब हमने 10th standard में रेनेसा के बारे में पढ़ा है, या फिर हमने जो रेवोल्यूशंस जो थे इंग्लैंड के बारे में पढ़ा है, तो हमने ये देखा था कि हाउ द क्लर्जी रूल्ड, और मीन्स दे वर एट पार विद द किंग्स, एंड द किंग्स एंड द क्वींस ऑलवेज रिस्पेक्टेड द क्लर्जी मोर। उनकी काफ़ी ज़्यादा से था पूरे सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। तो यहाँ से शुरुआत होती है उनके पावर्स के इंक्रीज होने की। ऑल्सो जब 1st से लेके 3rd century तक सिल्वर करेंसी यूज़ होती थी पूरे रोमन एम्पायर में, लेकिन किंग कॉन्स्टेंटाइन द फर्स्ट जब वो आए तो उन्होंने एक नया 4.5 ग्राम का गोल्ड कॉइन स्टार्ट किया। ओके, एंड देन ही यूज्ड टू पे द सैलरी विद दीज गोल्ड कॉइन्स। तो जो हायर नोबल मैन और जो आर्मी पीपल और हायर मिडिल क्लास के लोग थे, दे वर पेड सैलरी इन गोल्ड। सो दीज पीपल बिकेम वेरी वेरी रिच, while the lower middle class and the slaves became very very poor.
and this led to corruption in the society also, especially among the higher middle class people, right? And इसको हालांकि जो गवर्नमेंट था वो काफ़ी कोशिश करता था ये करप्शन को रोकने की, कर्ब करने की. द टाइम एंड अगेन देयर वर ways that the government would take control of this corruption, but yes, kabhi corruption did exist. It did not disappear anywhere, and it stayed there for a longer time because the reason kya tha? Unequal distribution of wealth. जो रिच थे वो बहुत रिच थे, जो गरीब थे वो बहुत गरीब थे, और इसीलिए जो रिच लोग थे वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते थे. Now to conclude the chapter, we notice that the Roman Empire is known for development, okay, and it is known as a momentous period for development in the sense कि हम उस ज़माने के accordingly, इतने साल पहले की बात कर रहे हैं हम, we are talking about BC, before Christ was born. उस टाइम के लिए वो समय बहुत डेवलप था. ओके, क्रिश्चियनिटी वाज द मेन रिलीजन. Islam also came into being. It just took birth, so it was rising in power. और क्योंकि मतलब जो चीज़ हम आज फॉलो करते हैं वो वही चीज़ें उतने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हो चुकी थी. जैसे कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज, हर कंट्री की एक बाउंड्री होती थी, तो उनके पूरे एम्पायर की बाउंड्रीज थी कि यहाँ तक रोमन एम्पायर, इसके बाद से दूसरा एम्पायर शुरू होता है. गोल्ड कॉइन्स यूज़ होते थे बिकॉज एंड दीज गोल्ड कॉइन्स वर कॉल्ड सॉलिडी. ठीक है, जैसे हम लोग अपनी करेंसी को रुपीज़ या अरबिक करेंसीज को दिनार या रियाल्स बोलते हैं, वैसे ही उस ज़माने में उनकी गोल्ड करेंसी को सॉलिडी बोला जाता था. ठीक है, the empire expanded to means it was one of the biggest empires of the world of that time. There was lot of investment, lot of import export, improved and high technology was used during that time, which was much ahead of that time. मतलब उस ज़माने के accordingly वो काफ़ी अपने समय से आगे चलते थे. Monetary expansion मतलब financially, it is one of the most, Roman Empire is one of the most richest empire, one of the most well developed empire, and one of the most high empires which used highly technological features which were according to that time which were much ahead of times. ठीक है, यानी कि उस ज़माने में जो रोमन एम्पायर था वो काफ़ी मतलब अपने एरिया के मामले में भी काफ़ी सबसे बड़ा था, फाइनेंशियली भी काफ़ी रिच एम्पायर था, और इन्वेस्टमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में या टेक्नोलॉजीज़ के बारे में नए नए टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होते थे, और उस ज़माने के हिसाब से वो काफ़ी अपने समय से काफ़ी ज़्यादा आगे चलते थे. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एम्पायर्स. जो इट इज़ जैसे कि इट वाज अ पॉलीथियस्ट कल्चर. पॉलीथियस्ट मतलब जहाँ पे एक भगवान की पूजा नहीं होती है, काफ़ी सारे भगवानों की पूजा होती है. ओके, सो आई टोल्ड यू दे वर्शिप्ड like the Greeks, they also worship the nature gods. कुछ भगवानों के नाम थे like Jupiter, Mars, Juno, Minerva, तो काफ़ी सारे नाम होते थे उनके भगवानों के, and they worshipped those gods because it was a, जब तक क्रिश्चियनिटी ने मोमेंटम गेन नहीं करा, दैट इज़ आफ्टर क्राइस्ट. ओके, AD, लेकिन BC में जब फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी की बात करते हैं तब तक हम लोग बात कर रहे हैं एक पोलिथिस्ट कल्चर की, जहाँ रोम में बिकॉज इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक कल्चर, तो काफ़ी सारे भगवानों की लोग पूजा करते थे. लेकिन जब क्रिश्चियनिटी ने मोमेंटम गेन किया
तो लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लगे, लेकिन ऑल अदर रिलीजन्स ऑल्सो को एग्जिस्ट। ऐसा नहीं था कि सभी क्रिश्चियंस बन गए थे, मेजॉरिटी क्रिश्चियंस थे, लेकिन बाकी रिलीजन्स भी साथ साथ को एग्जिस्ट करते थे। Lastly, we see that by the time 642, okay, that is basically 10 years after Prophet Muhammad died, the Arab Empire starting taking over the Romans. तो इवन जो सैसनियन एम्पायर था, जो इतने सालों तक रोमन्स के लिए एक थ्रेट बना हुआ था, जो अरबिक एम्पायर था, उसने भी वो सैसनियंस को हरा दिया, and they started coming in the Roman territories. So this is the beginning कैसे Arabs became more powerful, and this is the time when the Roman Empire started declining. ठीक है, तो कैसे रोमन एम्पायर डिक्लाइन करना शुरू किया, कैसे Arabs took over, they entered slowly but they also took over the whole empire and became a powerful empire. So in the next chapter we are going to study about the Arabics and the Arab Empire. For now, this is the end of the chapter, the Roman Empire. क्योंकि वो इतना ह्यूज था, इसलिए कहा जाता है कि वो 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर करता था, यूरोप, अफ्रीका and parts of Asia. ठीक है? So that is all in this chapter. I hope you have understood the chapter. कुछ समझ में नहीं आया है, so you're free to ask, and I will send you the notes on Monday. Till then, take care. But before I end the chapter, try and write the answer. I hope that you are writing the answers on your own and your understanding. अगर आप notes बना रहे हैं साथ साथ, तो आपको आंसर लिखने में परेशानी नहीं होगी. So go ahead, keep underlining whatever is told to you in the lecture, and keep the book in front of you. Read the chapter, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में. जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा. So do both the things. See the video, make notes and read the chapter. Then only you will be able to understand. So till the next chapter, take care of yourself and see you next Thursday. Bye-bye.